Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the 6th episode of SCDC Insights Wisdom for All with Ushna Tariq. Dear students, today we will learn 6th chapter of the power of focus, which is named the confidence factor. Experience tells you what to do while confidence allows you to do that. हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम ऐसे कर रहे होते हैं जो हम करना चाह रहे होते हैं. प्रॉब्लम क्या होता है कि हम उनको प्रॉपर्ली कर नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है. हम अपने स्टेप को ब्रीच नहीं कर पाते, हम उस जगह पर पहुंच नहीं पाते जहां पर हमने हमेशा इमेजिन किया होता है. और इस चीज़ के लिए मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लीडर की एग्जाम्पल शेयर करूँगी. Nelson Mandela in 1999, he was celebrating his 80th birthday, and it was a time when he came out of the prison from 24 years. वो एक ऐसा इंसान था जो उन लोगों के लिए लड़ना चाहता था जो कि ब्लैक पीपल थे. It was a time when black people were not given the equal rights equal to the white members, because white people were living in a superiority that we are a generation superior to the white people, and it was a kind of racial segregation, and he was the only person who spoke at that time over the concepts like genocide and apartheid. तो इन चीज़ों के ऊपर बोलने के लिए he went into the prison and he remained in the prison cell for almost 24 to 26 years. तो वो यहाँ पर क्या बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है. That there came so many times जहाँ पर मेरे कॉन्फिडेंस को स्वेरी टेस्ट किया गया, मेरे कन्विक्शन को टेस्ट किया गया, मेरे फेथ को टेस्ट किया गया, मेरे सेल्फ डिसिप्लिन को टेस्ट किया गया, मेरे बिलीफ को टेस्ट किया गया. बट आई रिमेन्ड फर्म बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट अपॉन माई सेल्फ, आई वॉज कॉन्फिडेंट अपॉन माई बिलीव, आई वॉज कॉन्फिडेंट अपॉन द आउटकम्स कि जो मैं कर रहा हूँ मैं सही डायरेक्शन पर कर रहा हूँ और मुझे उसके आउटकम्स बहुत अच्छे से अचीव होंगे. तो जब वो बाहर आता है प्रिजन सेल से तो वो आकर एक बहुत खूबसूरत स्पीच कर रहा है जिसकी मैं आपको कुछ झलकियां बताऊंगी. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measures. It is not our light, but it is our darkness that frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, fabulous and talented? Actually, who you are not to be that. You all are the creature of Allah. You all are born equal and free. हम सबको अल्लाह पाक ने कुछ यूनिक फीचर्स से पैदा किया है. तो हमें क्या करने की ज़रूरत होती है? We need to explore ourselves, and after the process of exploration you will be able to get to know that what kind of things you can perform well and what kind of things you cannot perform well. And when you came to know that these things can be performed in a very brilliant manner by yourself, you have to make yourself realize that if you will be confident, if you having a strong belief over the outcomes, you will be doing in an excellent manner. So remember, confidence is a habit that can be honed and strengthened every day. But remember one thing, you will be challenged by fear, worries, uncertainties, but you have to make yourself out of the lines of arrows of the negativity. Because if you will be dwelling yourself into the negativities, you will be going down, down and down like a whirlpool, and you will be nowhere over the road of success. So in order to come over the road of success, you have to make yourself sure that I am capable of doing something different from others, and you have to remind yourself over time and time that I can do that, I can do that and I can do that. इसकी एग्जांपल आपको मैं एक चाइल्डिश मूवी से भी दूंगी जिसका नाम 3 इडियट्स था. 3 इडियट्स में आमिर खान अपने आप को क्या बोलता है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. ये सिर्फ एक लिटरेरी कॉन्सेप्ट नहीं होते, ये अगर प्रैक्टिकली आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐड ऑन करते हैं तो आपको बहुत इमेंस और ड्रामेटिक चेंजेस फील होते हैं. आप अपने आप को बताएं दैट आई कैन डू दैट, क्योंकि जब आप अपने आप को ये चीज़ नहीं बताएंगे ना तो आपके अंदर वो करेज, वो बिलीफ, वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी कि आप एक्शन ले सकें. सो इन ऑर्डर टू टेक एक्शन इन टू अ राइट डायरेक्शन टू अचीव द डिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कॉन्फिडेंट. आपने अपनी एंक्शियसनेस को ओवरकम किया है, आपने अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल किया है और आप जाकर कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं. कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हम अडॉप्ट भी करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ों को क्विट भी करना पड़ता है. लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स की बात करूँगी विच यू हैव टू अडॉप्ट इन टू योर लाइफ इन ऑर्डर टू बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी. द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ दैट यू हैव टू रिजॉल्व ऑल द अनफिनिश्ड बिजनेसेस इन योर लाइफ. अब आपको पहले ये समझने की जरूरत है कि अनफिनिश्ड बिजनेसेस क्या होते हैं. ऑल द मैसेज इन योर लाइफ विच यू हैवंट डेल्ट विद राइट नाउ. कभी कभी जिंदगी में कुछ चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं इतने लथार्जिक होते हैं, इतने प्रोक्रेस्टिनेटेड होते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं देते और चीज़ें डिले होते होते उनकी मुद्दत खो जाती है, उनकी कदर खो जाती है, उनकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है. सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी इज जस्ट दैट यू हैव टू रिजॉल्व ऑल द अनफिनिश्ड बिजनेसेस इन टू योर लाइफ जिनके साथ आपने कभी भी डील नहीं किया होता.
अब यहाँ पर मैं 2 सिचुएशंस की बात करूँगी कि लोग ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? द फर्स्ट थिंग, दे प्ले द डिनायल गेम। फॉर एग्जाम्पल वो अपने आप से कहते हैं द सिचुएशन विच इज़ रियली हैपनिंग इन साइड इज़ नॉट जस्ट इन द प्रैक्टिकलिटी। उनको लग रहा होता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप डिनायल गेम नहीं खेल सकते, आपको कन्फ्रंट करना पड़ता है। अब डिनायल गेम की एक एग्जांपल लूँगी। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ पर्सन जो डेट लोडेड है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है। बजाय उसके कि वो उन रियल फिगर्स को देखे और कोई स्ट्रेटेजी को सॉर्ट आउट करे, वो क्या करता है? वो अपने आप के साथ डिनायल गेम खेल रहा है। डिनायल गेम में वो क्या कर रहा है? दैट आई एम नॉट अ पर्सन टू बी एट डेट लोडेड, आई एम अ पर्सन जो कि डील कर लेगा इसके साथ बट लेटर इन टाइम। रिमेंबर, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द मेजर प्रॉब्लम जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको एक लेथार्जिक पर्सन बना रही होती है। सेकेंडली, लोग मोस्टली क्या करते हैं? दे गेट इन टू द लिम्बो। लिम्बो इज बेसिकली अ काइंड ऑफ क्रिब। अगर आप इसको क्रिश्चियनिटी के अंदर बात करते हैं तो क्रिश्चियनिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर ये कैद खाना होता था जिसके अंदर उन लोगों को भेजा जाता था जो कि गलत काम करते थे। लेकिन अगर आप इसको एक जनरल परसेप्शन इसकी अगर आप डिस्कस करें तो इट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ क्रिब। बहुत से लोग होते हैं अपनी क्रिब से नहीं निकलते, अपनी कंफर्ट जोन से नहीं निकलते। वो अपनी कंफर्ट जोन के अंदर इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो उसको तोड़ना नहीं चाहते। तो ये 2 चीज़ें लोग मोस्टली करते हैं। लोगों को करने की क्या जरूरत होती है? यू नीड टू कन्फ्रंट द इशू एंड हेड ऑन लाइक अ कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू थिंक एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन यू विल बी एबल टू रियलाइज दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन परफॉर्म वेल एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट योर एरिया ऑफ ब्रिलियंसीज। जब आप ऐसा कर लेते हैं, आप अपने फियर के अंदर स्टेप इन करते हैं एंड आफ्टर स्टेपिंग इन इनटू योर फियर यू विल बी एबल टू कन्फ्रंट द इशू व्हिच इज हेडिंग ऑन राइट नाउ। क्योंकि जब आप कन्फ्रंटेशन के फेज में आते हैं तो आप बोल सकते हैं कि मैं क्या चीज़ बहुत अच्छे से कर सकता हूँ और क्या चीज़ बहुत अच्छे से नहीं कर सकता। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी इमेजिनेशंस को बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे होते हैं। रिमेंबर, योर इमेजिनेशंस आर मोस्ट पावरफुल। और एक बार एक स्कॉलर ने बताया था कि अगर आपको पता चल जाए कि आपकी इमेजिनेशंस कितनी स्ट्रांग है, आपकी थिंकिंग कितनी स्ट्रांग है, तो आप कभी भी नेगेटिव थिंकिंग को अपने पास भी मत आने दें। तो लोग अपनी इमेजिनेशंस को इतना ज़्यादा टॉक्सिकेटेड कर लेते हैं कि वो बाद में जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो वो कॉन्फिडेंट नहीं रहते। और एक बात याद रखिएगा कि जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते तो आपके अंदर फियर होता है और फियर आपके डाउट को करता है। जो आपका डाउट होता है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का रीजन बन जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं टुवर्ड्स ईच अदर। अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी भी कम हो जाती है। अगर फियर आता है तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो इस बात को अपने जहन में रखिएगा कि आपने एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनने के लिए आपको कन्फ्रंटेशन की ज़रूरत होती है। आपको अपने इशू के अंदर स्टेप इन करने की ज़रूरत होती है और आपको अपने आप को ये बताना पड़ता है दैट आई एम कैपेबल टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द पीपल। पहली चीज़ हमने डिस्कस की है हाउ टू रिजॉल्व योर अनफिनिश्ड बिजनेसेस। अब हम सेकंड चीज़ की बात करेंगे कि आपको कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनाने के लिए सेकंड चीज़ क्या होती है? रोड टू फ्रीडम पैराडाइम। रोड टू फ्रीडम पैराडाइम एक किस्म की वर्कशॉप होती है जिसके अंदर आपको बुलाया जाता है और आपसे डिफरेंट किस्म के सवाल किए जाते हैं और उन सवालों के बाद आपका जो मेंटोर होता है वो ये फिगर आउट कर रहा होता है कि आप ज़िंदगी में किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा खौफज़दा होते हैं, किन चीज़ों से नहीं होते। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों से डर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं जिनको हाइट फोबिया, एक्रोफोबिया होता है और उनको क्या बोला जाता है? उनके कुछ फ्रेंड्स उनको बहुत हाइटेंट बिल्डिंग के ऊपर लेकर जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं नीचे देखो। तो जब वो नीचे देखते हैं तो समहाउ उनका फेयर डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि कभी कभी वो फेयर डिसअपीयर होने की बजाय आपकी पर्सनैलिटी मज़ीद डिटोरिएटेड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करती हूँ कि आई एम वेरी मच मतलब मैं बहुत डरती हूँ, आई एम वेरी मच अफ्रेड ऑफ द ऑर्निथोफोबिया। मतलब मेरे अंदर एक फेयर है दैट इफ देयर इज़ अ बर्ड चिर्पिंग असाइड मी, देयर इज़ अ बर्ड मूविंग इन अराउंड मी, तो वो मुझे काट लेगा या वो मुझे कुछ कह देगा। तो वो इतना स्ट्रांगली मेरी पर्सनैलिटी के अंदर एम्बेड हो चुका है कि मैं उसको निकाल नहीं सकती। अगर कोई मुझे बोलेगा यू हैव टू स्टेप इन टू योर फेयर, यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, तो मैं क्या करूँगी? मुझे बर्ड को पकड़ना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ फेयर्स हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपने हर फेयर को रिमूव करना है, क्योंकि कभी कभी उन फेयर्स को रिमूव करने के चक्कर में आप अपनी पर्सनैलिटी की शख्सियत या आप उसकी पहचान को खो देते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है? यू हैव टू मूव टुवर्ड्स अ रोड टू फ्रीडम पैराडाइम। आप उन चीज़ों के ऊपर काम करें जो आप चीज़ें बहुत अच्छी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग ऑर्निथोफोबिया इन माई पर्सनैलिटी दैट डजंट मीन आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आई एम नॉट अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ऑर्निथोफोबिया इज समथिंग एल्स बट आई हैव टू फोकस आउट द थिंग्स जो कि मेरी स्ट्रेंथ्स हैं। तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करें, क्योंकि अगर आप अपनी वीकनेसेस के ऊपर फोकस करते रहेंगे ना, द थिंग विद विच यू ऑल एंड अप इज ऑल योर वीकनेसेस। तो अपनी वीकनेसेस के ऊपर फोकस मत करें, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करें। रोड टू फ्रीडम पैराडाइम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, वो ये है एवरीथिंग यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द फेयर
and if you want to achieve that thing, you must be having a strong belief upon yourself. अब जो बेटा ये जो रोड टू फ्रीडम पैराडाइम है, इसके अंदर जो आपका फेयर होता है ना, ये बेसिकली एक लीप के तौर पे काम करता है, यानी कि आपका फेथ और उधर से आपका एफर्ट, इसके बीच में एक चीज़ होती है आपका रिवॉर्ड। आपको इन दोनों को इक्वल लेवल पर लेकर चलना है और बाद में आप इस काबिल होते हैं कि आप अपने रिवॉर्ड्स को अचीव कर सकें। इसकी मैं एक एग्जांपल एक फायर फाइटर की दूंगी। फायर फाइटर्स के साथ एक वर्कशॉप हो रही थी जॉर्ज अडेयर के साथ एरिजोना के अंदर। तो जॉर्ज अडेयर ने उससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि क्या आपको फायर से डर नहीं लगता? तो वो फायर फाइटर बड़े सुकून से जवाब देता है, अगर मैं फायर से डरता रहूँगा तो मैं उन लोगों को सिक्योर नहीं कर पाऊँगा जिनको मेरी ज़रूरत है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, स्टार्टिंग में जब मैं फायर को देखता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पार में होती है, मुझे उससे थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जब मैं उसे स्टेप इन करता हूँ, मैं उसके अंदर जाता हूँ, तो मुझे सिर्फ इतना याद रहता है कि मैं यहाँ पर किस काम के लिए ट्रेन किया गया हूँ और किस काम के लिए भेजा गया हूँ। तो मुझे सिर्फ इस चीज़ की फिक्र होती है, हाउ टू रेस्क्यू द लाइव्स ऑफ द पीपल हु आर बर्निंग इन द फायर, एंड इफ आई विल बी ऑल द टाइम थिंकिंग दैट द फायर विल हर्ट मी, आई वॉन्ट बी एबल टू टेक द एक्शन। तो अपने आप को ये बताएं कि ये चीज़ आपको नुकसान नहीं दे सकती है। आपने क्या करना है, अगर वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, वो चीज़ आपके लिए सक्सेसफुल आउटकम्स ब्रिंग आउट कर सकती है, तो आप उसमें स्टेप इन करें विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ फेयर, क्योंकि आपका जो फेयर होगा ये आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को ब्रीड आउट कर रहा होता है, और जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो सारी बात है आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रेंथन नहीं होती है। अब ये एक वॉल ऑफ फेयर होती है। बेसिकली आपको करना क्या होता है कि आपको वॉल ऑफ फेयर को ऐसे चलते 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 ब्रीच करना है, तोड़ना है, उसको पीछे करना है। लेकिन अगर आप दूर से बैठकर इमेजिनिंग करते रहेंगे कि आई वॉन्ट बी एबल टू ब्रीच द बाउंड्री ऑफ द फेयर, तो सारी बात है आप उसको ब्रीच आउट नहीं कर पाएंगे। सो नेवर गो फॉर द नेगेटिव इमेजिनेशन, बिकॉज योर इमेजिनेशन वर्क स्ट्रॉन्गर देन योर वर्ड्स। यू हैव टू पुट योर पॉजिटिव इमेजिनेशन इन टू द एक्शन सो दैट यू मे बी एबल टू गेट द डिजायरेबल आउटकम्स। इसके बाद कुछ स्ट्रेटजीज भी होती हैं जिनको आप यूज़ करके अपने फेयर को ख़त्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई योर मोस्ट इंपॉर्टेंट फेयर। जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं देन यू हैव टू डिज़ाइन द स्ट्रेटजीज टू टॉपल विद योर फेयर, क्योंकि जब आप स्ट्रेटजीज डिज़ाइन कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि आपने क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ सिंगर जो कि अमेरिका में थी। वो सिंगर जो थी शी वॉज अ स्ट्रीट सिंगर, यानी कि वो ईस्टर्न और वेस्टर्न म्यूजिक में बड़ा परफेक्ट गाती थी, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि उसने कभी भी एक ह्यूज क्राउड के आगे जाकर गाना नहीं गाया था। और एक बार एक ऐसा टाइम आया कि उसको ह्यूज क्राउड के आगे जाकर गाना गाने का चांस मिला। तो वो कहती है ये वो टाइम था व्हेन आई वाज स्टैंडिंग बिहाइंड माय कर्टन्स, आई वाज ट्रम्बलिंग, माय लेग्स वर ट्रम्बलिंग, आई वाज शेकिंग, आई वाज स्वेटिंग ऑल द टाइम, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट आई एम अनएबल टू स्पीक और टू सिंग इन फ्रंट ऑफ अ ह्यूज ऑडियंस। तो कहती है जब मेरा कर्टन कवर होने का टाइम आया मेरे पास 10 सेकंड्स थे। उन 10 सेकंड्स के अंदर मैंने अपने आप को बताया कि अगर मैं यहीं रहूँगी और मैं सोच ही रहूँगी कि मैं नहीं कर सकती तो मैं नहीं कर पाऊँगी। उसने अपने आप के साथ स्मॉल मेंटल पेप टॉक्स करना शुरू किए। 10 सेकंड्स के अंदर उसने अपने आप को रियलाइज़ कराया दैट आई कैन डू दिस, आई वॉन्ट बी एबल टू गेट दिस चांस फॉर अनदर टाइम, एंड दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी आई एम हैविंग राइट नाउ, सो आई हैव टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। उसने उसको इतना पॉजिटिवली परस्यू किया कि विद इन दोस 10 सेकंड शी वॉज एबल टू कम इन फ्रंट ऑफ द ह्यूज ऑडियंस। और जब वो उस ऑडियंस के सामने आती है वो बहुत अच्छे तरीके से अपना गाना भी गाती है और बहुत अच्छे तरीके से ऑडियंस उसके लिए अपलॉड भी करती है, क्लैप भी करती है। तो मसला क्या होता है कि हम नेगेटिव पॉइंट्स को इतना ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि हम उनके पॉजिटिव आउटकम्स को भूल जाते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना तो सबसे पहले आपको उसके ऊपर बिलीफ होना चाहिए। दुआ भी आपकी तब कबूल होती है जब आपका यकीन पुख्ता होता है अपने रब के ऊपर और अपनी मांगी हुई दुआओं के ऊपर। तो अगर आपका यकीन पुख्ता नहीं है, अगर आपका बिलीफ सिस्टम, कन्विक्शन सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपके जो आउटकम्स होते हैं डेफिनेटली वो भी शैकल्ड होते हैं। उनको कंसिस्टेंट बनाने के लिए, उनको डिज़ायरेबल बनाने के लिए आपको अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्गर देन योर फेयर करना पड़ता है, क्योंकि दिस इज़ द लेवल ऑफ योर फेयर एंड दिस इज़ द लेवल ऑफ योर बिलीफ। इफ द बिलीफ सिस्टम इज दिस, डेफिनेटली आपके जो रिजल्ट्स होते हैं शैकल्ड होते हैं। अगर आपका बिलीफ सिस्टम आपके फेयर से ऊपर है तो आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपकी मर्जी के मुताबिक होते चले जाते हैं। Now I will be talking about another very important concept of forgive and forget. And being a human, we have been blessed with an incredible capacity to move on, to forgive the people, to forget the situations, and to take the new problems and head on towards the new issues. तो प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पास्ट में जी रहे होते हैं। अगर उनके साथ किसी ने गलत किया होता है तो उसके अंदर इतने एब्स्ट्रैक्टेड हो जाते हैं कि उसी के बारे में ऑल द टाइम थिंक ऑन कर रहे होते हैं। अब हमें बीइंग ह्यूमन क्या करने की ज़रूरत होती है? वी नीड टू रियलाइज द बाउंड्रीज ऑफ द फेयर, एंड आफ्टर दैट वी नीड टू डिक्टेट
ourselves that if I am not being able to change, nothing will be changed. तो सबसे पहले आप अपने आप को बदलें, आप अपने आप से स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप बदल जाएंगे ना तो सिचुएशन आपके लिए भी बदलती चली जाएगी. अब फॉरगिव और फॉरगेट के अंदर क्या होता है? फॉरगिवनेस इट इज़ बेसिकली अ ह्यूज लेटर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सबक छुपा हुआ है. अगर आप फॉरगिवनेस के प्रोसेस में नहीं आते, नेक्स्ट पर्सन को नहीं पता कि आपको उसके साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं या आप कोई ग्रजेस आप अपने निकाल रहे हैं. प्रॉब्लम क्या होता है कि वो आप नेगेटिविटीज़ को इतना ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि उस बंदे ने आपके साथ उस टाइम पर ये चीज़ गलत की थी जिसकी वजह से आपके कॉन्सिक्वेंसेस आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आए. तो इसका नुकसान सिर्फ आपको होता है, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत होती है. अब फॉरगिवनेस का प्रोसेस कैसे शुरू किया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ. ज़िंदगी में कभी कभी हमसे गलत फैसले हो जाते हैं, हम ज़िंदगी में कभी कभी वैसे नहीं कर पाते जैसे हम हमेशा चाह रहे होते हैं. तो आप अपने आप को माफ़ करना सीखें. आप अपने आप को बोलें इट इज़ ओके, अगर ये चीज़ मैं नहीं हासिल कर पाया या कर पाई तो मेरे पास ज़िंदगी में और बड़े ऑप्शंस हैं. सेकेंडली यू नीड टू फॉरगिव द पीपल अराउंड योर सेल्फ एंड दीज पीपल आर योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर मेंटोर्स, योर सिबलिंग्स और एनीवन अराउंड यू. हमारे माँ बाप ने बाज़ औक़ात कभी कभी हमें ऑब्स्ट्रक्ट किया होता है पास्ट के अंदर कि हमें वो नहीं करने दिया जाता जो हम करना चाहते होते हैं. लेकिन जैसे ही हम एडोलसेंट में आते हैं, मैच्योरिटी की लाइफ के अंदर आते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है द डिसीजन टेकन बाय द पेरेंट्स वाज मच बेटर देन आवरसेल्व्स. तो हमें उनको भी माफ़ कर देना चाहिए और उनको माफ़ करके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए. क्योंकि जब हम उनको माफ़ करते हैं तो हम इस काबिल होते हैं कि हम प्यार को, कंसर्न को, इज़्ज़त को, रिस्पेक्ट को दे सकें. क्योंकि जब आप देते हैं तो ही आपको मिलता है, वरना आपको नहीं मिलता. फॉरगिवनेस की और फॉरगेटफुलनेस की एक बहुत प्यारी एग्जांपल मैं यहाँ पर शेयर करूँगी. वियतनाम वार के अंदर देयर वाज अ लेडी जिसका नाम था फान की मून. फान की मून अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि वियतनाम वार के अंदर अमेरिका ने जब ऑर्डर किया था कि आप हमारे कंट्री के ऊपर बॉम्बिंग कर दें, तो वो टाइम था जब देयर वाज ऑल अराउंड द फायर, और फायर के वो जो स्वैम्प थे वो मेरी स्किन के ऊपर बर्न कर रहे थे. मतलब उसकी जो स्किन थी इट वॉज बर्निंग, और इतनी बुरी सिचुएशन उसने यहाँ पर पिक्चराइज की हुई है जो मैं प्रॉपरली बता नहीं पाऊँगी. लेकिन इट वॉज अ वेरी डिटोरियस एंड वेरी बैड सिचुएशन. अब इस सिचुएशन के अंदर वो क्या बताती है कि इट टुक मी ऑलमोस्ट 14 सर्जरीज एंड ऑलमोस्ट 18 मंथ्स के मैं हॉस्पिटल में रही. मेरी सर्जरीज हुई, मेरी स्किन प्रॉपरली दोबारा से वैसे डेवलप नहीं हो पाई, मेरा कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो गया. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो कहती है मैंने सीख लिया कि मैंने मूव ऑन कैसे करना है. उसके बाद वो कनाडा में शिफ्ट होती है और इस टाइम उसके पास एक बेबी भी है. और वो बताती है कि जब मैंने ये सीखा दैट हाउ टू फॉरगेट द ऑल पास्ट बैड मेमोरीज एंड हाउ टू मूव ऑन इन माई लाइफ, I considered myself that much confident and able that I will be able to take a new initiative about my life. तो जब आप ज़िंदगी के अंदर अपने पास्ट के गलत डिसीजंस, पास्ट की गलत मेमोरीज़ के अंदर ही रह जाते हैं तो आप मूव ऑन नहीं कर पाते. और जब आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस के न्यू लैडर्स को भी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे. तो वो कहती है कि मैंने सीखा है कि कैसे लोगों को माफ़ करके कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं. क्योंकि जब आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे ना, उसका जो बोझ है वो सिर्फ आपके ऊपर होगा, लोगों के ऊपर नहीं होगा. उस बोझ से आप बार बार सोचेंगे और बार बार सोचने के प्रोसेस से फियर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आएगा एंड फियर ब्रीड्स टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. और जब आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आती चली जाएंगी. अब आपको यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है? हमने फर्स्ट एपिसोड में बात की थी हैबिट्स के बारे में. अब आपको जो चीज़ अच्छी होती है आपको उसको अपनी हैबिट का पार्ट बना लेना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू मेक कॉन्फिडेंस एज योर न्यू हैबिट. यू हैव टू practice it until it becomes your new normal behavior, and when it becomes your new normal behavior you will be considering yourself that confident personality into every situation कि आप कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, आप कभी भी हेजिटेंट नहीं होंगे कि आपने एक्शन लेना है. लेकिन इस चीज़ के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है विनिंग एटीट्यूड. अब विनिंग एटीट्यूड फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ बहुत अच्छा करने जा रहे हैं लेकिन आपके अंदर जो एटीट्यूड है डिटोरिएटेड है, आपके अंदर जो एटीट्यूड है वो उतना विनिंग नहीं है जितना विनिंग होना चाहिए, तो आप जीत नहीं पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल बेसबॉल की एक गेम हो रही थी जहाँ पर नॉर्मन एक पर्सन था और फॉल्डो दूसरा पर्सन था. नॉर्मन वॉज ऑल अबाउट टू विन द ग्रीन शर्ट. ग्रीन शर्ट उन लोगों को मिलती है बेसबॉल के अंदर जिन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है. नॉर्मन वॉज ऑल अबाउट टू विन, लेकिन अभी सेकंड लास्ट स्ट्रोक अभी रहती थी. लेकिन जो नॉर्मन का एटीट्यूड था वो बहुत ज़्यादा क्या था, डिटोरिएटेड था. मतलब he was not humble, he was not down to earth, but he was having an attitude like I am the superior one and I am the dominant person here in this game. लेकिन जो फॉल्डो का एटीट्यूड था वो ये था कि वो पीछे से आकर स्ट्राइक करता था, पीछे से आकर वो गेम को पासा पलट देता था, जिसको बोलते हैं टेबल टर्न कर देना. ठीक है. अब फॉल्डो का जो कंसिस्टेंट एटीट्यूड था वो इतना कमाल था कि वो जो लास्ट गेम थी उसका रिजल्ट इतने ड्रामेटिकली चेंज हुए कि टेबल्स टर्न हो गए. और उस टाइम नॉर्मन उन लोगों में कंसिडर किया जा रहा था जिसका एटीट्यूड डिटोरिएटेड था और फॉल्डो उन लोगों में था जिसका एटीट्यूड इतना विनिंग था कि उसने वो गेम जीत ली.
अब बताने का यहाँ पर स्टोरी मकसद ये होता है कि कभी कभी सिर्फ कॉन्फिडेंस की गेम इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आपके अंदर एटीट्यूड भी विनिंग होना चाहिए, आपके अंदर कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर कंसिस्टेंट परसिस्टेंट एक्शंस नहीं है और आपने अपने पॉजिटिव राइट एटीट्यूड के साथ गेम को विन नहीं किया, तो आपका कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए आपको कुछ स्ट्रेटजीज को भी यूज करने की जरूरत होती है। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट 6 कॉन्फिडेंस बूस्टिंग स्ट्रेटजीज विद यू पीपल व्हिच यू कैन यूज इनटू योर डेली लाइफ in order to become a confident personality. The first one, every day remind yourself that you have done something great in the past. क्योंकि जब भी फेलुअर आता है, the thing is that you need to learn from your failures. You need to learn from your past mistakes. अगर आप सीखते नहीं हैं तो आप वहीं obstruct हो जाते हैं. So in order to move on, you have to remind yourself that I am that person who had achieved something into the past, and right now if I had done that thing, why can't I do right now? So you have to tell yourself कि आपने पास्ट में अगर कुछ अचीवमेंट किए तो आप अभी भी कर सकते हैं। सेकेंडली, you have to move for the reading of some inspiring stories or autobiographies of the people who have done something great. आप नोट करना कि जब आप कोई लिटरेचर ऐसा पढ़ते हैं जो कि डिप्रेसिव होता है तो आपकी पर्सनालिटी भी डिप्रेसिव होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे लिटरेचर को पढ़ने की तरफ मूव करते हैं जो कि इंस्पायरिंग होता है, जो कि डिफरेंट होता है, जो कि आपको मोटिवेशन दे रहा होता है, तो उस मोटिवेशन से, उस लिटरेचर को पढ़ने के बाद आपकी पर्सनालिटी के अंदर भी बड़ा इमेंस और बड़ा पॉजिटिव चेंज आ रहा होता है। तो आपको उन लोगों की स्टोरीज को पढ़ने की ज़रूरत होती है जिन्होंने पास्ट में कुछ अच्छा किया होता है। सेकेंडली, बी थैंकफुल। हम ऐसे नाशुक्रे लोग हैं कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी होती हैं, हम उनको काउंट करना भूल जाते हैं और हमें काउंटिंग याद रहती है जो सिर्फ इस चीज़ की कि मेरे साथ आज दिन में ये बुरा हुआ है, मेरे साथ आज दिन में ये प्रॉब्लम हुई है, और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि बाज़-औक़ात इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हमारे लिए हो जाती हैं कि अगर वो ना हो तो शायद हमें रियलाइज़ हो कि ब्लेसिंग्स कितने इंपॉर्टेंट है। सो बी ग्रैटिट्यूड, अपने पर्सनैलिटी के अंदर ग्रैटिट्यूड लेकर आएँ, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर थैंकफुलनेस लेकर आएँ, छोटी छोटी बात पर लोगों को सॉरी कहना सीखें, छोटी छोटी बात पर लोगों को प्लीज़ कहना सीखें। इससे आपकी पर्सनैलिटी डाउन नहीं होगी, इससे उनको अच्छा लगेगा दैट यू हैव बीन सोशलाइज्ड इनटू अ गुड एनवायरनमेंट। और आपकी तरबियत बाज़ औक़ात आप लेकर नहीं फिरते, आपका एटीट्यूड, आपकी बातें शो अप कर रही होती हैं। तो आप शो करें कि आपकी जो सोशलाइजेशन है वो बड़े प्रोडक्टिव, बड़े पॉजिटिव इन्वायरमेंट में हुई है, और जब आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे छोटी छोटी चीज़ों पर तो लोग आपको हेल्प करने पर तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने एटीट्यूड में रहेंगे दैट आई एम द माचो मैन एंड आई कैन डू ऑल द थिंग्स, ऐसा नहीं होता। हम में से हर इंसान इम्परफेक्ट होता है। द थिंग इज़ दैट यू नीड टू यूज़ ऑल दोज इम्परफेक्शंस इनटू अ मैनर दैट इन विच यू कैन गेट द डिज़ायरेबल आउटकम्स। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हम अपनी इम्परफेक्शंस को अपने लिए स्टिग्मा बना लेते हैं। तो कॉन्फिडेंस आपको बताता है दैट हाउ यू कैन गेट योरसेल्फ आउट ऑफ द स्लाइंस ऑफ एरोज एंड नेगेटिविटीज़। ठीक है, अगर आप अपने आप को उन्हीं तमाम चीज़ों के अंदर इंक्लूड करते रहेंगे, आप कभी भी थैंकफुल नहीं होंगे, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ग्रेटिफिकेशन नहीं आएगी। जब आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी तो आप काबिल नहीं बन पाएंगे। चौथे नंबर पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू बिल्ड दोज एक्सीलेंट रिलेशनशिप अराउंड यू हु कैन बूस्ट यू अप। हमारे इर्द गिर्द दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं पुश फैक्टर, एक होते हैं पुल फैक्टर। द पीपल हु आर वेरी मच positive for you, these are pushing you to do something different and innovative. The people who are negative don't want to see you to be flourished, वो आपको पुल कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे। तो आपने अपना सपोर्ट सिस्टम ऐसा बनाना है जो कि आपको पुश फैक्टर प्रोवाइड कर रहा होता है, पुल फैक्टर नहीं। पांचवें नंबर पर पुश योर सेल्फ टू अकम्प्लिश द शॉर्ट टर्म गोल्स। ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी गोल सेटिंग बड़ी कमाल होती है, लेकिन वो गोल सेटिंग इतनी अनरियलिस्टिक होती है कि वो लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल लाइफ में होना चाहिए, मैंने एक चैप्टर में बात भी की थी इसके ऊपर, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टॉलरेंस का लेवल आपको अपने अंदर लाना पड़ता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एपिसोड अच्छी रिकॉर्ड करवा ली है, मैं अपने आप को अपलोड करूंगी, अपने आप के लिए क्लैप करूंगी। दीज आर द शॉर्ट टर्म गोल्स कि मैं फीडबैक का वेट नहीं करूंगी लोगों का, मैं अपने आप को बोलूंगी दैट उष्णा यू डिड समथिंग डिफरेंट, यू डिड समथिंग ग्रेट, इट इज़ ओके, कीप ऑन कीप मूविंग। गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन अगर मैं अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करूँगी तो मैं अगले एपिसोड के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाऊँगी। तो आप अपने आप को अप्रिशिएट करें उन शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए जो कि आपने अपने आप के लिए सेट किए होते हैं, क्योंकि अगर आप वीकली विक्ट्रीज की बेस के ऊपर अपने आप को अपलोड करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ड्रामेटिकली चेंज होती जाएंगी। उसके बाद
डू समथिंग फॉर योर सेल्फ एवरी वीक। ऐसा क्यों होता है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कुछ कर रहे होते लेकिन अपने लिए नहीं कर पा रहे होते। तो इफ़ यू आर एबल टू लव योर सेल्फ, टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, टू केयर फॉर योर सेल्फ, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू द सेम थिंग्स विद द अदर पीपल अराउंड यू। तो आप अपने आप से प्यार करें, आप अपने आप की इज्जत करें, आप अपने आप की केयर करें, क्योंकि जब आप अपने आप के लिए ऐसा कर रहे होते हैं ना, आपके अंदर ये करी जा रही होती है कि आप औरों के लिए भी ये करना चाह रहे होते हैं। तो अपने आप के साथ ये चीज़ें करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जाते जाते मैं डिस्कस करूंगी फेथ फैक्टर। अगर आपका फेथ फैक्टर स्ट्रांग नहीं है, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, आपको आउटकम्स के ऊपर यकीन नहीं है, तो चीज़ें आपके लिए चेंज नहीं हो सकती हैं। तो ये 6th चैप्टर था जिसके अंदर हमने कॉन्फिडेंस फैक्टर की बात की है। इंशाल्लाह इन द 7th एपिसोड वी विल बी टॉकिंग अबाउट आस्क फॉर व्हाट यू वांट, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम बात नहीं करते, हम कम्युनिकेशन नहीं करते, हम पूछते नहीं हैं। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और हाँ, आपने जाते जाते इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, ISB के ऑफिशियल फेसबुक पेज को, वीडियो को शेयर करना है, और ताकि आप नहीं, आपके इर्द गिर्द लोग वो चीज़ें सीख पाएँ जो शायद उनको सीखने की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छा सिखाती हूँ, लेकिन हम में से अगर एक दूसरे से एक छोटी छोटी चीज़ सीखें तो शायद हम अपनी पर्सनैलिटी के अंदर नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।